یعنی کہ خداوند نے یہ صاف یہاں فرما دیا ہے کہ آئے عزیزو، یوحنا رسول جو یوحنا عرف بھی کہلاتا ہے، اس کے وسیلے سے خداوند فرماتا ہے آئے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے کو کاٹتے، دوڑتے، جھگڑے، لڑائیاں، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ یعنی کہ چگلی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو اس سے مطلب کہ ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ ایکسکیوز می۔ یعنی کہ ہمیں محبت کرنا پڑے گی، ہمیں غالب آنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے پر غالب نہیں آتے، تو ہم کیسے خدا کے لوگ ہیں؟ یعنی ہمیں صبر جو کہ ہولی اسپرٹ کا ایک پھل ہے، اگر وہ ہم نہیں اپنے میں رکھتے، یعنی ہمیں صبر ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں کرتے، تو روح کی نعمتوں کے ساتھ روح کے پھل بھی ہیں جو غلطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اور ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا سے ہے، یعنی یہ شیطان کے قبضے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہمارا باپ ہے۔ خدا یسوع نے انہیں کیا کہا تھا فریسیوں سے جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ یعنی کہ جو خدا کے خلاف کام کرتا ہے، جو خدا کے لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں یا جو خدا کے خلاف ہیں، وہ خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ خدا سے وہ پیدا ہوئے جو خدا کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی جو غریب ہیں، ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کیسے کرسچن ہیں؟ وہ ہمارے ہڈی اور گوشت ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے، چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں۔ اس میں بحث نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت رکھیں آپ، اور اگر کوئی غیر قوم میں ہے ان سے بھی آپ کو محبت رکھنی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ان کے بھی جسم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یسوع مسیح ہمارا بھائی کس طرح کہ اس کی سکن اور ہماری سکن ایک جیسی ہے، ہم ہیومن ہیں، اس لیے وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن روح میں وہ ہمارا باپ ہے، وہ ایور لاسٹنگ فادر ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع نے یہ اپنے کلام میں یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، کیونکہ ہم محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک روح القدس ہمیں نہیں ملتا۔ یہ امپاسبل ہے کہ آپ محبت کر سکیں۔ ہم رومیو 5 باب اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہ ڈالا جائے۔ تو یہ بہت زبردست آیت ہے جو میں آپ سے آج بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی بتایا ہوا ہے لیکن یہ کلام کے اندر آ گئی ہے یہ بات پھر سے۔ رومیو 5 باب اس کی 5ویں آیت، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ یعنی دیکھیں کہ خدا کی محبت اس وقت جب ہم روح القدس حاصل کرتے ہیں تو وہ خدا کی محبت ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں روح القدس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم خدا کی بات نہیں مانیں گے جب تک روح القدس ہمارے اندر نہیں آتا۔ تو اے عزیزو، اگر آپ روح القدس لیں گے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر آپ خدا سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے روزانہ آپ سجدے کر کے دعائیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو خدا آپ پر ظاہر کر رہا ہے۔ اگر کوئی غیر مسیحی ہو، اگر کوئی غیر مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں،
और वो यसु मसीह को खुदा का बेटा भी वो कह सकते हैं। जी हम मानते हैं खुदा का बेटा यसु है, वो मान ले, फर्ज किया वो मान भी ले, और यसु मसीह को वो मसीह भी कहें भी, वाकई हम मानते हैं वो मसाया भी है, प्रॉमिस्ड मसाया भी है, और मोहब्बत भी रखे, यानी वो मोहब्बत रख सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई जो गैर मज़हब में से वो हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, वो इज्जत करते हैं बहुत से लोगों की। मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो खुद वो सच्चाई से काम करना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि मुस्लिम और हिंदू और सिख सब अपने लोगों के लिए और मुल्क के लिए अपनी जानें दे देते हैं। ये सच्चाई की बात जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, सब जानते हैं ये बातें। लेकिन क्या वो खुदा से पैदा हो गए हैं और खुदा को जान गए हैं? ये सवाल पैदा होता है। अगर बिल फर्ज हम जान भी लें कि वो खुदा से पैदा हो गए हैं, मगर यसू ने जो खुद कहा है वो हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत। यहां आके सब क्वालिफाई नहीं कर सकते कि वो खुदा तक पहुंचे। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। यानी कि देख नहीं सकता इसलिए कि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर भी नहीं जा सकता। यूहन्ना 3 बाब उसकी 5वीं आयत। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। यानी कि आपको पानी यानी यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा, और रूह यानी कि रूह कुदस का बपतिस्मा, फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। और ये सदियों से ये बात हमसे छिपाई गई है, तो बहुत से लोग पता नहीं कहाँ चले गए, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आज आपको बारिश का पहला कतरा बनना पड़ेगा और लोगों को तालीम देनी पड़ेगी ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हों। खुदावन ने क्या बोला अपने मुंह से कि वो लोग जो ना तो खुद दाखिल होते हैं और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हैं, उनसे दूर रहो। यानी कि वो तो अंधे रात बताने वाले हैं, खुद भी डिच में जाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं और दूसरों को भी खड्डे में डाल देते हैं, वो भी गिर जाते हैं साथ। तो ये चीज़ें जो ये बहुत ही ज़रूरी हैं कि हमें नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं, आसमान पर जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है कि हम अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते। तो लेकिन कोई कह सकता है और नहीं जी हम पार्टी करेंगे, जहन्नम में पार्टी करेंगे। यहाँ कई गोरे कहते हैं कि जी जहन्नम में पार्टी होगी, खूब म्यूजिक होगा और डेवल वहाँ होगा और वो तो ये गिटार वगैरह बजाता है और बहुत होगा, अच्छी पार्टी होगी, शराबें चलेंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। और वो अंधेरी जगह है, वो पिट डार्कनेस है, वहाँ आग भी नजर नहीं आती। आग क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि वहां खुदावन की प्रेजेंस नहीं है। जहन्नम में खुदा की लाइट नहीं है, सिर्फ ऊपरली दुनिया पर है। ये जो जमीन से ऊपर खुदा की प्रेजेंस है, जहन्नम में नहीं है उसकी प्रेजेंस, और वहां बिल्कुल डार्कनेस है और कोई भी एक दूसरे को नहीं देख सकेगा वहां। लेकिन क्या है कि जलते होंगे क्योंकि आग होगी, नजर नहीं आएगी। और ये बड़ी अजीब बात है, ये कभी भी किसी खादम ने मेरा नहीं ख्याल के कभी बताया हो कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। बाइबल में क्या खुदावन ने कहा कि उन्हें बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। तो अंधेरा वही है जो पिट डार्कनेस है, और जहाँ कोई भी इंसान एक दूसरे को नहीं देख सके, क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस में आप देख सकते हैं सबको। आप कहेंगे यहाँ कैसे फिर लाइट है, ये क्या चक्कर है भाई? आपको याद होगा कि खुदावंद ने सूरज को बनाया था और चांद को, लेकिन इससे पहले उसने
पहली दफा लाइट बना दी थी जब उसने पहला कलाम किया था कि रोशनी हो जा, ये सबसे पहले खुदा ने कहा था और रोशनी हो गई थी और पूरी दुनिया में खुदा की जो ब्लू लाइट जिसे कहते हैं, खुदा की ग्लोरी है, पूरी दुनिया पर हो गई थी। और फिर सूरज और चांद को क्यों मुकर्रर किया गया? इसलिए कि ये उस रोशनी को कंट्रोल कर सकें। ये असल मामला, सूरज चांद ये कोई इसमें कुछ नहीं है, ये उस रोशनी को कंट्रोल करता है जो खुदा की जो ब्लू लाइट जिसे ग्लोरी ऑफ गॉड कहते हैं, उसको कंट्रोल के लिए सूरज और चांद को बनाया गया था। देखें, मैं आपको वो आयत बताता हूँ ताकि आप ये ना कहें कि पता नहीं अपने पास से ही बता दिया। ये आप पैदाइश पहले बाब को देखें और कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है। 14वीं आयत, और 14 से आप 14 से 18 तक पढ़ लें ताकि सब चीजें समझ आ जाए। और खुदा ने कहा कि फलक पर नजर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो, और वो फलक पर अलवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डाले। और ऐसा ही हुआ। तो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले और दिन पर और रात पर हुक्म करे और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। आमीन। हाँ जी, यानी कि खुदा ने ये इसलिए बनाया था कि वो रोशनी डालें। कैसे? कि जो लाइट पहले से बन चुकी है, खुदा की ग्लोरी, उसके वसीले से वो सब कुछ करते हैं। जिस दिन खुदा ने वो रोशनी ख़त्म कर दी तो सूरज क्या होगा? तारीक हो जाएगा। चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, वो इसलिए कि खुदा रोशनी रोक लेगा। शरीर से भी खुदा कहता है मैं अपनी रोशनी रोक लेता हूँ, और वो अंधेरे में, हालांकि वो रोशनी नजर आती है उसको, लेकिन वो गुनाह को नहीं ढूंढ सकता कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। यानी कि वो इंसान अंधेरे में खदेड़ा जाता है जो गुनाह मुतवातर गुनाह करता रहता है। तो ये बात असल में ये बहुत बड़ा ये जो कलाम है कि ये रोशनी का क्या है। खुदा ने चाहा तो इस पर भी आपको बताया जाएगा, गाय बगैर छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि खुदा की जो लाइट है यही इंटरनेट है खुदा का। आखिर में ये मैं बताता हूँ, यही उसका इंटरनेट है। इसके वसीले से फरिश्ते आपके सामने आते हैं। उस इंटरनेट के ज़रिए से उनकी तस्वीरें बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो सामने खड़े हैं 3D में। ये सब खुदावंद का सिस्टम है। तो इसको समझना पड़ेगा। अगर खुदा अपनी हिकमत हम में डालता है तो उसके जो चीज़ें हमें समझ लगना शुरू हो जाती है। बाइबल में क्या लिखा है? तब खुदा ने उनके ज़हन को खोला तो ताकि वो किताब मुकद्दस को समझ सकें। बस ये काफ़ी है, क्योंकि आज लंबी मीटिंग होनी है, ओवरनाइट होगी, पूरी रात इबादत होगी, तो इसलिए इतने को काफ़ी समझे। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।